ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੇ ਖੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਕੀਨ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਅਹੰਕਾਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ ਇਹ ਚਾਖੀ ਸੋਈ ਜਾਣੇ, ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਠਿਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪੂਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਲੁਕਾਇਆ ਲੁਕੇ ਨਾਹੀਂ, ਜੇ ਕੋ ਰਖੇ ਲੁਕਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਹੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਜਣੇ ਵੜ ਕੋਠੜੀ, ਬਾਹਰ ਜਗ ਜਾਣੇ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਏ ਮਸਤਕ ਪਰਮਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਸਤਕ ਪਰਵਾਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਚਮਕ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਨ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦੇ। ਧਨ ਤੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
महाराज दी बाणी ताई कहती है कि रतन लुकाया लुके नाही जे को रखे लुकाई। छुपाया नहीं जा सकता है, कोई कितनी भी कोशिश करे। पर जिन हर पायो तिने छुपायो, जिसने प्राप्त किया है उन्हें छुपाया भी है, फिर उन्हें छुपाया भी है। बड़ा ही कोई माहिर होवे, कोई बड़ा ही अभ्यासी बंदा होवे, बड़ी बंदगी करन वाला कोई होवे, जिन्हें अपनियां इंद्रियां दे उत्ते काबू कीता होवे, ਉਹੀ इस तो बच सकता वे, ਉਹੀ थोड़ा बहुत छुपा सकता वे। प्रगट तो होएगा पर अपने तो प्रगट नहीं होएगा, ਉਹੀ इस तो बच सकता वे। बड़ा कोई अभ्यासी होवे ते जिन्हें इंद्रियां दे उत्ते काबू कीता होवे। वरना जद मनुख नूं प्रभता मिलती है ना, थोड़ा जा किधरों मान सत्कार मिलता है, दो बोल जद कन्नां दे विच अपनी उस्तत दे पैंदे ना, तो ये 50 ग्राम की जुबान ते फिर काबू नहीं रहिंदा बंदे दा। ये डोल जाती है, ये बोल जाती है। इसनूं काबू विच रखना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितना ही कोई अपने आप नूं फिर बचाने की कोशिश करे, जुबान तो रोकना मुश्किल हो जाता है। कितनी कोशिश करने तो बावजूद भी गल निकल ही जाती है, अंदरों निकल ही जाएगी। यही कारण है कि जिन्हां दे कोल संसार विच कुछ भी नहीं है, जिन्हां कोल कुछ नहीं है, वो बड़ा रौला पाउंदे पे ने अज भी साडे कोल बहुत कुछ है, साडे कोल बहुत कुछ है। तो जिन्हां ने प्राप्त किया है वो छुपाउंदे पे ने, जिन्हां कोल कुछ नहीं है वो रौला पाउंदे पे ने, जिन्हां कोल सब कुछ है वो छुपांदे पे ने, वो छुपा रहे हैं। जैसे बड़े सुंदर बोल हैं एक विद्वान दे, कहंदे कर अपनी हकीकत से आगाह मुझे ऐ खुदा, कर अपनी हकीकत से आगाह मुझे ऐ खुदा, यहाँ तो खुद खुदा बने बैठे हैं तेरा पता बताने वाले। हे परमात्मा, तू आप ही कृपा करके अपने आप तो मैनू जानू करा। इत्थे ते तेरा पता दसन वाले ओही रब बने बैठे ने, ओही खुदा बने हुए ने, ओही खुदा बने बैठे ने। हालांकि उन्होंने सिर्फ पता दसना है, बस मंजिल उन्होंने कोल भी कोई नहीं है, पर वो तो खुद ही रब बने बैठे हैं। मस्कीन जी की रसना तो ही सुनिया सी कि एक सिख विद्वान ने सारे भारत का भ्रमण किया और उसने भ्रमण करके जानकारी इकट्ठी की कि पूरे भारत दे विच 84 के करीब ऐसे मनुख ने जिहड़े आप ही खुदा बने बैठे न, आप ही रब बने हुए ने। उन्हें रिपोर्ट दी सी भी अद्धे को रब ते मर गए ने, कुछ विदेशों भी चले गए ने, कुछ होण भी है ने जिहड़े रब बने बैठे ने। हुण अगर देखिए ना तो कुछ रब जेलों विच भी पए हुए ने, उन्हां दे उत्ते बड़े बड़े वड्डे संगीन केस बने ने और जेलों दे विच सड़दे पे ने। हुण भी खुदा बने बैठे ने। मस्कीन साहब जी भी अक्सर इसके उत्ते बड़ा खुलासा करते सन। किससे पता पूछे तेरा मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला, वो बेखबर मिला। है खुदा किदे कोलों तेरा पता पुछिए, जिन्हां कोल तेरा पता है
वो तो चुप करके बैठे जिहदे कोल तेरा पता कोई नहीं है, वो रौला पांदे पे ने, वो रौला पांदे पे ने। किससे पता पूछे तेरा मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। वो तो कुछ बोलन जोगे रहे ही नहीं हैं, वो तो बोलते ही नहीं हैं। तो जिन्हां कोल तेरी खबर नहीं है, तेरी मंजिल का पता भी कोई नहीं है, वो लोगों नूं रौला पा पा के दसदे पे ने साडे कोलों परमात्मा दे भेद लै लो। कुछ ऐसे भी मूर्ख मैं कह सकना वा जिहड़े कहंदे ने हुणे आओ तो खुदा दे दर्शन करा दीए, रब दे दर्शन करा दीए। 1 मिनट का काम है, आप भावें कदी वेख्या ही ना होवे, पर लोग पिछे लगे हुए ने, उन्हां दी दुकानदारी चलदी पई है बड़ी अच्छी। बाबा फरीद कहते ने कि होण नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। जिहड़े रब दे नेड़े हुंदे ना, वो फिर भेद किसे नूं नहीं देंदे हन, पता नहीं लगन देंदे, क्योंकि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। ये तालमेल बैठदा नहीं है, फिर किधरे पागल करार दे दिता जाता है, किधरे पत्थर मारे जाते ने, किधरे कई तरह के इल्ज़ाम ला दिते जाते ने, किधरे चांदनी चौक दे विच शहीद कर दिता जाता है, देगां दे विच उबाल दिता जाता है। भेद न किसे देन, वो किसी नूं भेद देंदे नहीं हैं अपना। खैर बड़ा लंबा चौड़ा खुलासा हो सकता वे। मस्कीन जी इस विच बड़े माहिर सन। होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन। रहंदे तां गुरु नानक दे बिल्कुल नेड़े सन, पर किसी नूं भेद नहीं सन देंदे। कथा दे विच कई वारी इशारतन गल्लां कर भी जांदे सन, पर लोकी समझदे सन शायद पढ़ लिख के किधरों ते सुनिया होना है, या कुछ अपने कोलों कोई गल बनाई होनी है। कईयां ने इहदे विरोध भी कीते हन, बड़ा कुछ लिखिया भी है मस्कीन जी बारे पुट्ठा सीधा। लेकिन मस्कीन जी ऐसे भेद नूं छुपाण दे विच बड़े माहिर सन। वो पता नहीं सी लगदा आम बंदे नूं। 1993 की गल है, मस्कीन साहब जी ने गुरबाणी दियां 2 पंक्तियां दी विचार संगतां दे सामने रखी सी। उस समय दे विच उहदे विच मस्कीन साहब जी ने कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु गुरमच्चा श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच करम सेविए सच्चा, ये 2 पंक्तियां सन। इहदे विच मस्कीन जी ने ये ख्याल दिते सन, जो गुरबाणी कह रही है कि सतसंगत दे विच जाण दे नाल, गुरु दी सेवा करन दे नाल, गुरु नूं सुनन दे नाल परम आनंद दी प्राप्ति होंदी है। और कुंडलनी सुलझी, जो अंदर कुंडलनी मार के जो परम शक्ति हर मनुख दे अंदर जो अंदर बैठी हुई है ना, वो सुलझ जाती है, वो खुल जाती है। जो गंढ अंदर पई हुई है वो खुल जाती है। उहदी खुलण दा और खोलण दा तरीका, खुलण तो बाद जो उसकी अवस्था बनती है, जो परम शक्तियां अंदर जाग पैंदियां ने, परम आनंद की जो अंदर प्राप्ति होंदी है, उन्होंने मस्कीन जी ने इहदे उत्ते बहुत लंबा चौड़ा खुलासा किया सी। कुंडलनी सुरझी सतसंगत परमानंद गुरु गुरमच्चा, ये पंक्तियां आधार सन उस कथा का। लेकिन बहुत सारे जो अभ्यासी पुरुष सन ना, वो मस्कीन जी की कथा सुन के बड़े हैरान हो रहे सन। भी इंज लगता है भी ये जो बोलते पे ने ना कथा के दौरान,
ये अपनी हड्ड बीती दसते पे ने, जो उन्होंने वेख्या वो दसते पे ने, जो इन्होंने अंदर माणिया है वो संगत नूं दसते पे ने। क्योंकि कहण दा तरीका भी हुंदा वे, बंदे दी कहण दी उहदे चेहरे दे हाव भाव तो भी अंदाज़ा लग जाता है भी ये किस अवस्था दे विच गल करदा पिया वे, कित्थों बोलदा पिया वे। या फिर इंज लगता है कि जो कुछ ये बोलते पे ने इन्होंने अपनी अखां दे नाल किसे दे उत्ते घटना वापरदी हुई देखी है, या वेखी है, या हड्ड बीती दस रहे हैं मस्कीन साहब जी। एक बीबी जिसका नाम नहीं दसिया गया, लगता है भी बड़ी कोई अभ्यासी बीबी सी बहुत। मस्कीन जी दे नाल अक्सर इस तरह गुफ्तगू करते होंदे सन। मस्कीन जी नूं पापा जी कह के बुलांदी सी, और कई बार आपस दे विच बड़ियां गूढ़ियां रहस्यमई गल्लां आपस विच करया करदे सन। इस बीबी जी ने मस्कीन जी नूं पुछ लिया भी जेड़ी तुसी कथा कर रहे हो ना, तुसी इसनूं माणिया है, तुहाडी कुंडलनी सुलझ गई है? कहंदे ने मैं सिर्फ इतना पुछया ही सी कि मस्कीन जी ने आख्या नहीं नहीं ये तू की पुछदी पई है, जा चाह बना के लिया। गल नूं होर पासे तोड़ दिता और उसनूं बाहर भेज दिता भी जा मेरे वास्ते चाह बना के लिया। वो बीबी जी कहंदे ने कि उस तो बाद उन्होंने बाहर जाना सी, फिर मौका नहीं मिलिया गल करन दा। मस्कीन जी चले गए, फिर मेरी गल हो नहीं पाई। काफ़ी समय बाद मस्कीन जी फिर मिले, इन्हां ही बीबी जी ने फिर पूछया तुसीं दस्या नहीं? मस्कीन जी कहंदे ने नहीं नहीं मेरे इतने वड्डे भाग कित्थे हन। बस इतना कह के चुप कर गए, बस इतना ही आख्या वे। जो पहुँचे नहीं वो बहुत दरसाउंदे ने, जो पहुँचे नहीं वो बहुत दरसाउंदे ने, जो पहुँचे हन वो सब कुछ छुपाउंदे ने। जेड़े पहुँचे नहीं वो तरौला पाते पे ने, जेड़े पहुँचे हैं वो सब कुछ छुपाते पे ने। मस्कीन साहब जी बड़ी सफाई दे नाल गल नूं किसे होर पासे मोड़ के ते आप विचों निकल जाते सन। होन नजीक खुदाए दे भेद न किसे देन, दसदे नहीं सन। कोई 2002 या 3 दी गल है, इन्हां ही बीबी जी ने मस्कीन साहब जी नूं एक बारी फिर पुछया जिहड़ी तुसी गल करदे हो एक चित्त जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच न आयो। एक छिन दा जिहड़ा तुसी जिक्र कीता है ना, क्या उस छिन तक तुसी पहुँचे हो? उत्थों तक तुसी पहुँचे हो? तो मस्कीन जी ने हमेशा की तरह फिर इनकार कर दिता भी नहीं नहीं मैं सिर्फ ये अनुभव किया है, मैनू पता लग गया भी इस तरह हो सकता है, पर अजे होया नहीं है, अजे होया नहीं है। सुन समाद अनहद तैनाद कहन ना जाई अचरज विस्माद। जिहड़ी सुन समाद की तुसी गल करदे हो, क्या उत्थों तक तुसी पहुँचे हो? सवाल करदी सी है बीबी, क्योंकि वो खुद इसे मार्ग दी पांदी सी, इसे ही मार्ग दी। जिहड़ी तुसी गल करदे हो कि परमात्मा दा नाम एक दम दे विच पूरा हो जांदा है ते परमात्मा दी प्राप्ति भी एक दम दे विच ही होंदी है, वर्तमान दे विच, क्या उस वर्तमान दे विच तुसी जी रहे हो? मस्कीन जी कहंदे ने नहीं,
मेरे इतने वड्डे भाग नहीं हन, तू क्यों बार बार पुछदी है। ये बीबी जी दसदे ने, कहंदे ने एक दिन मस्कीन साहब जी ने आपे ही मैनू फोन किरता भी पुत्र तेरे नाल गल करन नूं जी करदा सी। उन्होंने फिर पुछया भी तुसी दसदे नहीं हो, मैं कई बारी सवाल करदी हाँ तुसी दसदे है नहीं मैनू। फिर जद पुछया गया भी क्या तुसी इस अवस्था तक पहुँचे हो, इस अवस्था नूं तुसी माणिया है, कहंदे ने बड़े ही संकोच दे नाल मस्कीन साहब जी ने बड़ा जोर देण दे उत्ते हल्की जी हाँ कर दिती ते नाले चुप कर गए, फिर नहीं बोले। तो उन्हां बीबी जी ने आख्या फिर तुसी सन नाल झूठ क्यों बोलते रहे, मैं तुहाडे कोलों कई बारी पुछदी रही हाँ, होर भी सतसंगी जो तुहाडे कोल आउंदे सन वो भी पुछते रहे ने, तुसी झूठ क्यों बोलते रहे। मस्कीन जी कहंदे ने कथा दे दौरान कई बारी इशारतन सारियां गल्लां कह भी जांदा सां, पर हुण जे गुरु ही मैनू आखे भी तू ना कर दे तो फिर मैं की करां। गुरु ही करांदा है जो कुछ भी करांदा है, मैं तो करदा नहीं। अक्सर मस्कीन जी क्या करते सन कि कथा हो जाती है गुरु करा लैंदा है, जे मैनू करनी पै जाए तो फिर तो खपना ही होंदा है बस, जे मैनू करनी पै जाए तो कथा करी दी नहीं, कथा हो जाती है तो गुरु करांदा है, तो जे गुरु ही आखे भी नहीं तू ना कर दे कोई गल नहीं, तो फिर मैं की करां दसो। बीबी जी मस्कीन जी नूं कहंदे ने मैं सुनिया तुसी अपनी जीवनी लिखवा रहे हो, 2003 की गल है, तुसी अपनी जीवनी लिखवा रहे हो। मस्कीन जी कहन लगे हाँ कोशिश कर रहा मैं। तो उस बीबी जी ने आख्या भी अपनी जीवनी दे विच तां नहीं सब कुछ पर्दे दे विच रख लिया तुसी, उत्थे ते नहीं तुसी संकोच कीता, उत्थे ते नहीं तुसी छुपा लिया सब कुछ। मस्कीन जी कहंदे ने नहीं अधूरी लिखाई है, अधूरी। तो फिर संगतां नूं किवें पता लगेगा। मस्कीन जी कहंदे ने कोई होर लिखेगा जीवनी नूं, वो पूरी होवेगी, कोई होर लिखेगा, असी नहीं। मस्कीन साहब जी दियां ये सारियां गल्लां उन्हां बीबी जी ने जो मस्कीन जी दे नाल वार्ता की सारी उन्हां दी जीवन झलकियां दे विच लिखी हुई है। पर मस्कीन साहब जी बड़े ही माहिर सन अपने आप नूं छुपाण दे विच, वरना लोग तो कुछ होंदे नहीं फिर भी लोगों नूं दसदे फिरदे हन कि मैं कित्थों तक पहुँच गया, मैनू कितनियां प्राप्तियां हुईयां ने। मस्कीन जी सब कुछ प्राप्त करके भी चुप कर जाते सन, अपने आप नूं एक पासे कर लेंदे सन। लेकिन रतन लुकाया लुके नाही जे को रखे लुकाई, जेड़े मस्कीन जी दे साथी सन्ना अभ्यासी पुरुष वो मस्कीन जी दो सब कुछ पहचान जानते सन कि मस्कीन जी कोल कितना खजाना है, उन्हां दे बोलों तो ही पता लग जाता वे। मस्कीन जी जिथे एक महान कथावाचक सन, उत्थे मस्कीन साहब जी एक बहुत ही बुलंद पाया शायर भी सन। शायरी उन्हां दे अंदरों निकलदी सी मस्कीन जी दे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कवि की कल्पना होंदी है, एक उड़ारी होंदी है कवि दी, और कवि दे बोलों तो सानू पता लग जाता है कि इसकी सोच कितनी गहरी है। जैसे समुंदर दे विच जेड़ा गोताखोर जितनी डूंगाई दे विच गोते लांदा ना, उतने ही वधिया सुच्चे मोती कढ़ के लियांदा, उतने ही वो कीमती खजाने थलों कढ़ के लै आउंदा।
किनारियां ते बहण वाले नहीं समझ सकते कि समुंदर दे अंदर कितना खजाना भरिया पिया है। मस्कीन साहब जी दे बोलों तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो। मस्कीन जी बुलंद पाया शायर सन। यही कारण है 1, 2, 3 मार्च का जो अलवर दे विच समागम होंदा है, मस्कीन जी 2 तारीख नूं दोपहर दे समय सवेर दे दीवान की समाप्ति तो बाद कवि दरबार करया करते सन। कवि दरबार 50 तो भी वध कवि उस विच शिरकत करते सन और मस्कीन साहब जी सारिਆਂ ਨੂੰ सुनते सन। सारा दिन दीवान विच बैठे रहना, पहले कथा कीर्तन का दीवान, फिर कवि दरबार, थोड़ा जिहा विचों आराम का समा, शाम नूं फिर दीवान शुरू, और अद्धी रात तक फिर चलदा सी। मस्कीन जी दे नाल भी कुछ बहुत अच्छे शायर चलते सन। ज्ञानी तरलोक सिंह जी गुंचा बड़े ही अच्छे शायर सन। दास ने उन्हां दी संगत भी कीती हुई है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे उत्ते ऐसी कविता उन्होंने लिखी है, कमाल कर दिता है। जिमें कुजे दे विच समुंदर नूं बंद कर दिता है, ऐसी कविता बनाई है उन्होंने। और रोशन सिंह सागर जो पहले मुसलमान सन, फिर अमृत छकिया, फिर सिख बने, बड़ी मिठी आवाज़ दे मालिक सन। ये भी मस्कीन जी दे नाल अक्सर समागमां दे विच चलिया करदे सन। और कवि राज जय सिंह दी शुगल, जय सिंह जी शुगल साहब, ये भी मस्कीन साहब जी दे नाल बड़े पुराने समय तो नाल चलते सन। बहुत पुराने समय तो मस्कीन साहब जी दियाँ कवितावां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो कि मस्कीन साहब जी कितना गहरा सोचते सन। उन्हां दी पंजाबी दियाँ रुबाइयाँ हन, उर्दू दियां रुबाइयाँ, पंजाबी दे शेर, उर्दू दे शेर। 26 दे करीब पंजाबी दियाँ रुबाइयाँ ने, 42 दे करीब उर्दू दियाँ रुबाइयाँ, और 3 उन्हां दे पंजाबी दे शेर ने ते 7 उन्हां दे उर्दू दे शेर ने। इतना कलैक्शन दास कोल पिया होया वे। उन्हां दा एक शेर है, तू अगर गुलशन में है तो वीराने में कौन है। तू अगर गुलशन में है तो वीराने में कौन है, तू अगर शमा में जलता है तो परवाने में कौन है। इस विच मस्कीन साहब जी ने ख्याल दिता है, सब में जोत, जोत है सोए तिस दे चानण, सब में चानण होए। ये तो जिन्हें अखी वेख्या होवे ना, उही इतनी गल कर सकदा वे। इन्हां बोलां तो तुसी अंदाज़ा ला सकते हो मस्कीन साहब जी की अवस्था का। एक रुबाई दे विच मस्कीन साहब जी लिखते ने, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाया, मैं चाही एक बूंद तू सागर उमड़ाया, मैं मंगया एक फुल तू गुलिस्ता सजाया, मैं लब्बां अनेरे विच जीवन दी ज्योति, लखां तेरी रहमत ने दीवे जगाए। मस्कीन साहब जी की रुबाई है। इस विच मस्कीन जी ने ख्याल ये दिता है कि मेरी झोली तो बड़ी छोटी है, पर हे परमात्मा तू दात इस विच बहुत पा दिती है, बहुत पा दिती है। भांडा तो मेरा बहुत छोटा है, पर तू बहुत कुछ पा दिता है इस दे विच। हुण जिसने इस आनंद नूं माणिया होवे कि परमात्मा ने मेरी छोटी झोली दे विच बहुत कुछ पा दिता वे। आम बंदा हर वक्त शिकायत ही करता रहता है, परमात्मा ने मैनू दिता ही की है। ये तां हो सकता है जे मनुख दे अंदर सबर ते संतोख प्रवेश कर जावे, और ये तां हो सकता है जे बंदगी करदियां करदियां मनुख उस अवस्था तक पहुँचिया होवे।
ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ परमात्मा तू मैनू बहुत कुछ दिता है। वरना दिते होए दा मनुख शुकराना नहीं करता, जो नहीं दिता उदियां 100 शिकायतां 100 गिले शिकवे रब दे उत्ते मनुख करदा ही करता है। मनुख एक मस्कीन साहब जी दे एक संगी साथी सन, प्रिंसीपल गंगा सिंह जी, बहुत अच्छे विद्वान सन, फिलोसफर सन अच्छे। मस्कीन साहब जी छोटी उम्र सी और इन्हां दी उम्र वड्डी उम्र सी, तकरीबन कोई उन्हां दी उम्र 84 साल के करीब ते मस्कीन जी की उम्र 21 साल दी। और इस वाक़े तो भी पहले मस्कीन साहब जी सीसगंज साहब प्रिंसीपल गंगा सिंह जी की कथा सुनन जाया करते सन उचेचे तौर पर। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने हाथ कलम अगम मस्तक लिखावती, इन्हां इक्को ही पंक्तियां दी विचार प्रिंसीपल गंगा सिंह जी ने 15 दिन तो भी वध कीती सी। मस्कीन साहब जी ने सारी बैठ के सुनी सी है। मस्कीन जी ने मस्कीन साहब हल्द्वानी दे विच कथा करन वास्ते पहुंचे हुए सन ते प्रिंसीपल गंगा सिंह जी भी उत्थे ही सन। हल्द्वानी दी ये घटना है। सवेरे कथा तो बाद कोल एक छोटी जी नदी सी जिस विच पानी बहुत थोड़ा हुंदा है, और सैर करदियां करदियां पार चले जाते सन, नाल प्रिंसीपल गंगा सिंह जी और मस्कीन साहब जी। छोटी जी उम्र दे विच ही मस्कीन जी ने सवाल किया प्रिंसीपल गंगा सिंह नूं। तुसी सवालों तो भी अंदाज़ा ला सकते हो भी इस मनुख दे अंदर कितनी गहराई है, ये कितने उच्चे ते सुच्चे सवाल करता है। मस्कीन जी ने पूछ लिया भी बुजुर्गवार प्रिंसीपल जी, मन दी की हालत है, मन दी की हालत है। बड़ी अच्छी तुसी कथा करते हो, फिलोसफर हो, मन दी की हालत है। प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहन लगे कि यह जो तू पूछया ना, ये असभ्य है, सभ्य शब्द नहीं है। किसे कलों किसे दे मन दी हालत नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुख अपने मन दी हालत सच सच बयान नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता है। ये बड़ी हिम्मत का काम है कि अपने मन की हालत नूं बयान करदा भी मैं कित्थे खड़ा हाँ, मेरी अवस्था की है, की कुछ अंदर चलदा पिया है। चंगे काम तो मनुख वड्डे वड्डे बोर्ड ला के भी लोगों नूं दस दिंदा है, पर अंदर की कुछ बुराइयां चल रही ने कदी किसी ने इन्हां दा बखान नहीं किया है, कदी नहीं। तो मन की जो असली हालत है वो तो ना होई, फिर कोई नहीं दसेगा इस बारे। फिर भी प्रिंसीपल गंगा सिंह जी कहन लगे ठीक है तू पूछिया तो मैं तैनू रुबाई दे विच इशारे नाल तैनू दस देना वा, मैं सिर्फ इशारा मात्र। उन्होंने एक रुबाई सुनाई मस्कीन साहब जी नू। दिल सागर सागर दे वांगर सी अत डूंगा अड़िया, ज्ञान विचार सिदक दे मोती पा दाता ने कड़िया, पर ए बाण कुचज्जी मेरी बाहर बोल लुटाया, जप तप दी खट्टी ना खट्टी खाली फिर दर खड़िया। उन्होंने इस विच ख्याल दिता भी लोगों नूं सुना सुना के मैं सब कुछ लुटाया है, आप नहीं प्राप्त किया है। परमात्मा ने बड़ा कुछ इस हृदय दे विच पा के ज्ञान विचार सिदक दे मोती पा दाता ने कड़िया, पर मैं सब कुछ लुटाया ही है, आप कुछ भी प्राप्त नहीं किया। लोगों नूं मैं चानना देंदा पिया, पर आप अंधेरे दे विच ही हाँ। और इतना बोलदियां बोलदियां
उन्हां ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਬਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਦਿਲ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀ ਪਿਆ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ। ਦਿਲ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀ ਪਿਆ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ। ਜੋ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗਨ ਸੀ ਪਿਆ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ। ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਮਸਕੀਨ ਇਸ ਤਾਈਂ ਲੱਗਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੀਦਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਮਕ ਲੁਟਾਈ ਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਮਕ ਲੁਟਾਈ ਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅੰਧਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਕੰਬਕਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੱਲ। ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ। ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਪਰ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। तो मस्कीन साहब जी बहुत ही बुलंद पाया शायर भी सन, कथावाचक भी महान सन और महान लीडर भी सन। एक सुचੱਜੇ ਜਥੇਦਾਰ भी सन। जिथे उन्होंने नाल कवि चलते सन, बहुत सारे रागी प्रचारक उन्होंने साथियों के तौर पर नाल चलते सन, जिन्हां विच बहुत सारे सिंह साहब भी सन। सिंह साहब मस्कीन साहब जी दे नाल चलना माण समझते सन। मस्कीन साहब जी सिंह साहब दे नाल चलना माण समझते सन। जिन्हां विचों कुछ नाम मैं आप जी नूं सरवण करा देना हाँ, क्योंकि समा भी हो गया। उन्हां विचों सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी श्री दरबार साहब, सिंह साहब जथेदार श्री अकाल तखत साधु सिंह जी पौरा साहब, सिंह साहब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी वेदांती जो पहले हेड ग्रंथी रहे, फिर अकाल तखत साहब दे जथेदार रहे। ज्ञानी जसविंदर सिंह जी सिंह साहब वो भी नाल रहे ने। इस तो अलावा बहुत सारे रागी सन जिहड़े मस्कीन जी दे नाल चलिया करते सन। मस्कीन जी अक्सर क्या करते सन कि मैं अकेला ही चला हूँ, राहे उल्फत में लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। चले तो कल्ले ही सन, बस आपे ही गुरु के प्यारे मिलते गए, कारवा भी बन गया है। जैसे गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते न सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी।
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਏਕੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ इतना ही कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी सगुफे हैं हमारे सिहन में, कुछ ऐसे भी सगुफे हैं हमारे सिहन में जिन पे बहारें नाज करती है। इस शायर कहते कदी कदाई कोई ऐसा एक फुल खिलदा वे जिहदे उत्ते बहारां भी नाज करदियां हन, जिहदे उत्ते गुलशन भी नाज करदा है, जिहदे उत्ते बगीचा भी नाज करदा है, जिहदे आस पड़ोस विच रहण वाले भी जिहदे उत्ते नाज करदे हन। ऐसा ही एक फुल सिख पंथ दे विच पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी दा जदों खिलिया, सारे पंथ नूं उन्हां दे उत्ते माण होया। उन्हां दी जीवन गाथा जो आप सरवण कर रहे हो, सतगुरु मेहर करन कुछ होर विचारां आप जी दे सन्मुख रखणियां हन। मस्कीन जी एक काफला लैके चलते सन, एक चलती फिरदी संस्था सी उन्हां दी, एक चलदा फिरदा एक विद्यालय सी मस्कीन जी दा, जिहदे विच कई साथियां दे तौर ते, कई विद्यार्थियों के तौर ते नाल चलते सन। कल विचार आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश करांगे। सतगुरु मैनू तौफीक बख्शिश करन। आप जरूर फेसबुक पेज कथा सागर इसनूं फॉलो करो, यूट्यूब चैनल कथा सागर मनमोहन सिंह निमाणा उसनूं आप सबसक्राइब करो, शेयर कर दिओ ताकि होर संगतां तक भी ये विचारां पहुँच जान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।